in language and literature, in our writing skills, we have three concepts as it is written on your screen itself: the descriptive paragraph, story writing, and diary entry. So let us begin with what is descriptive paragraph, which you have already done. See, descriptive का मतलब हो जाता है describing anything. तो अगर हम लोग in a very easy language, if we say कि what is descriptive paragraph, it is very easy. You may be having description of a person. You may be having description of any event, any situation. यानी आपके पास कुछ hints होंगे. You will be having some hints. The hints can be a complete, what we say, guesswork, or it can be that imagine you, जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, imagine you visited the local Surajkund Mela. That's an event. Or you were caught in a situation, you saw something, अब आप फंस गए, तो आपने क्या किया? What did you do? तो description is something which is more realistic. It's not something जो हम स्टोरी बना रहे हैं. अब एग्जाम्पल मैंने कहा कि यू विजिटेड द सूरज कुंड मेला, और से अभी हमारा जो है बुक एग्जीबिशन, बुक मेला चल रहा है, मतलब इट स्टार्टेड टुडे इन फैक्ट. सो यू हैव गॉन ओवर देयर. अब आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि मैम हमें तो नहीं पता वहां पर क्या था, वी डोंट नो, वी हैव नेवर विजिटेड. तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में व्हाट यू हैव टू डू, नॉर्मली फॉर सच मेलास, ये जो सूरज कुंड मेला है विच इज अ हैंडीक्राफ्ट मेला, मोस्ट ऑफ द टाइम द hints are given. But when it comes to the book exhibition, book mela, you may not be given any hint. You may not be. It is not it, you will not be. You may not be. So if there is something which you don't know, like abhi, there was one question which I had done with the other group, and that was describing a person, and unke school ke andar the question was on Sunita Williams. And in that, the photo was given, nothing else was given. The photo was given, nothing else was given. अब बच्चा कैसे करेगा उसको? बच्चा सुनीता विलियम्स के बारे में नहीं जानता है, तो कैसे करेगा? हाउ यू विल डिस्क्राइब इन सच ट्रिकी सिचुएशंस? ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस में आपको क्या करना होता है? यू कैन जस्ट टेक, अगर हिंट्स है गुड, नहीं है थिंक ऑफ दैट सिचुएशन. लाइक सूरज कुंड मेला, मेला, अब आपको ये तो पता मेला, मेले में क्या क्या होता है. द वेरी फर्स्ट हिंट इज आपका जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड. इन दैट यू हैड सीन नंबर ऑफ स्वीट में मतलब की स्वीट सेलर्स, बैलून, ये सब आपने देखा. एंड आज की डेट में जितने भी मेला होता है, मोस्ट ऑफ द दीज काइंड्स ऑफ फेयर, दे हैव द विलेज फेयर, दे हैव द पॉटरी, they have handicraft items, they have food, relishing food items from different states, right? Then you have the toys, then you have handmade products. हैंडीक्राफ्ट आपके फैब्रिक्स वगैरह में आ गए, हैंडमेड में आपके पेपर वगैरह आ गए. तो आप इनमें से कोई 3 या 4 ले लीजिए. टेक एनी 3 or 4 and describe it. That when you visited, then where it was held. सूरज कुंड मेला नॉर्मली आपका फरीदाबाद में दिखता लगता है. ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ.
But if it is some kind of exhibition, some kind of fair, where it was, and then what did you see over there? Anything which you are describing, any person who is alive, it will be in present tense. If it is an event, it is in past tense, because event का मतलब है आप उस event को देखकर आए हो, so that is in the past tense. There are, as I said, you might be having a person, an event or situation. तो जो event है या फिर situation है, these are already done. लेकिन जो पर्सन है दैट विल डिपेंड। अब अगर आप महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हो तो पास्ट टेंस आ जाएगा। इफ यू आर राइटिंग अबाउट सुनीता विलियम्स, आपका प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। नरेंद्र मोदी है तो प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, राइट। तो इफ यू आर स्टक समवेयर, लाइक आई सेड, एक क्वेश्चन आया था सुनीता विलियम्स का। नाउ वी डोंट नो हु इज सुनीता विलियम्स, लेट अस अज्यूम हमने उस फोटो को देखा, उस पिक्चर के अंदर देयर वाज she was wearing the space suit, so we could identify that she is a space crew. They उन लोगों ने जो है कंटेम्पलेट किया, she was कल्पना चावला, then I told them no, it is Sunita Williams. So Sunita Williams is an Indian American, she is Indo-American, space में है। Now ISRO is for India, but वहां के लिए NASA, तो NASA, and you can use certain realistic things which you know, जिसके लिए आप श्योर हो उसको लिखो, right? So the tense should be, if it is about a person who is alive तो present में चलता है, and if it is about an event or situation, that would go into the past tense, because that we are describing the past event. If I talk about the book exhibition कहाँ होता है? You can use any relevant area, any expo center. एक्सपो होता है जहां एग्जीबिशंस लगते हैं, ओखला, नोएडा, प्रगति मैदान। देन कितने दिनों के लिए लगा था, हाउ मेनी डेज इट वाज? इट मे बी फॉर 7 days, नॉर्मली इतना होता है 7 to 14। देन नंबर ऑफ पब्लिशर्स आते हैं फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मेनी ऑथर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर कई ऑथर्स आते हैं, दे गिव देयर ऑटोग्राफ, दे बुक लॉन्च होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स आपको मिलते हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, डिजिटल, ई बुक, ऑडियो बुक, तो यू कैन मेंशन इन दैट। तो जस्ट 1 मिनट के लिए उस सिचुएशन को, अगर इफ द हिंट्स आर नॉट गिवन, देन उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर, that what can be, what could have been there. नेक्स्ट आपका आ जाता है that is story writing and diary entry. अब आता है आपका लिटिल ट्रिकी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अगर हम देखते हैं तो इट कम्स अंडर द शॉर्ट कंपोजिशन, not very difficult to describe anything. But if it comes to story writing, so story writing is something where you are using your creativity. आपकी जो creativity है, it is used. Story writing, we normally write in the past tense. But in between आपके जो डायलॉग्स होते हैं, इफ यू आर एडिंग डायलॉग्स, यू नीड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट दिस इन्वर्टेड कॉमास, एंड जो आप डायलॉग्स लिखने वाले हो दो जनों के बीच में, दैट कैन बी इन द
present tense. Like the teacher asked, where is your book? तो अगर आप किसी डायलॉग को स्पेसिफाई करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, तभी आप डायलॉग को यूज करना। लेकिन अगर आप डायलॉग यूज कर रहे हो तो देन यू नीड टू पुट इट इन द इन्वर्टेड कॉमा, और एल्स आपका नरेटिव फॉर्म चलता है, यानी कि एक राजा था, एक रानी थी, उनके मतलब ऐसे करके आपको उसे नरेट करना है इन द पास्ट टेंस। गिव नेम्स टू योर कैरेक्टर्स। एक अच्छी स्टोरी राइटिंग अच्छी होती है जब आप अपने कैरेक्टर्स को नाम देते हो। लाइक एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ देयर वाज अ यंग बॉय हु केम अप, तो आप उस यंग बॉय का एक नाम दे सकते हो। द यंग बॉयज नेम वाज अनिल, अभिनव, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपके कैरेक्टर्स में सॉरी आपके उसमें कैरेक्टर्स हैं, उनको नाम दीजिए। देर आर 3 kinds of stories that come in class 9th। आपके 3 तरीके के स्टोरीज होती हैं जो 9th स्टैंडर्ड में आते हैं। एक, यू आर फर्स्ट इज यू आर गिवन द बिगिनिंग, और आपके क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि बिगिन द स्टोरी विद दीज लाइन्स। Sham was going on his bike towards a city. I'm just writing it. This is the beginning. Sham was going on his bike towards the city suddenly, यानी कि आपकी जो स्टोरी है वो यहीं से बिगिन होगी। इससे पहले आप कुछ भी एड ऑन नहीं करोगे। दिस इज मैंडेटरी। दिस इज कंपल्सरी। अगर आप इसमें आप उससे पहले कुछ नहीं लिख सकते तो अब सोचो क्या हुआ होगा। अब आपके ऊपर है कि आप इस स्टोरी को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो। तो फॉर एटलीस्ट 2 minutes थिंक, आप इसको कौन सा जॉनर देना चाहते हो। वेदर यू वांट टू एंड इट एज अ कॉमेडी, यू वांट टू एंड इट एज अ थ्रिलर, यू वांट टू एंड इट एज जस्ट अ मतलब कि एक सिंपल स्टोरी। आप इसको कैसे लेकर जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर अपनी स्टोरी को डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, श्याम वॉज गोइंग ऑन हिज बाइक टूवर्ड्स द सिटी। अब हमें ये वाला जो ये वाली लाइन है ये तो पूरी लेनी है। सडनली his bike slipped on the canal road and he fell unconscious। मेरा पहला जो यहां से स्टार्ट था वो मेरा पूरा हो गया। अब मुझे आगे का सोचना है। ठीक है, अब आप आगे कुछ भी सोच सकते हो, हाउ यू वांट टू प्रोसीड इट। अब आगे मैं सोच रही हूं कि व्हेन श्याम ओपन्ड हिज आईज he found himself। अब आप इसको कैसे लेना चाहते हो, whether you want to put it as a thriller,
तो आप ये बोल सकते हो कि उसको गुंडों ने पकड़ लिया था। आप उसको एक एक्सीडेंट दिखाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ हॉस्पिटल। He could see people all around him and he was not able to recognize anyone. Someone said, या फिर the doctor said, आर यू ओके? अब यहां पर हमारा क्या था, ये हमारा डायलॉग है। तो इस डायलॉग को मैं ऐसे यूज कर रही हूं। फॉर few moments he was not able to answer. He felt a throbbing pain in his on his head. इसका मतलब गुड vocabulary. He screamed. Then he saw his mother besides him. The doctor injected him and he slept. The next day, when he regained full consciousness, he remembered how he fell. He told his mother, he told his friends that while coming from his college, he saw muddy water. He was trying to pass through it. Suddenly, his bike went out of control and he fell unconscious. आगे, his friend Darsh told him that fortunately they were going through that area and they found him unconscious. They took him to the hospital and the doctor told that he had reached on time. He had minor bruises and would recover soon. नहीं, मैंने ऑन द स्पॉट बनाया है। तो ऐसे आपको इसके अंदर अपने स्टोरी में नाम, जैसे इसमें शाम दिया हुआ था लेकिन मैंने दर्श ऐड कर दिया, तो आपको ऐसे ऐड करना, और जहां आपको लगता है कि आप एक डायलॉग डाल रहे हो उसको आपने ऐसे डालना है। नाउ वन important थिंग विच यू all always miss is the title. The title is what you wear. आप एक what you say, you go to a party, what kind of what kind of clothes do you wear? Something very elegant. If you are going to a picnic, आपका थोड़ा कैजुअल रहता है। एंड इफ यू आर गोइंग टू योर स्कूल, आप यूनिफॉर्म डालते हो। और अगर आपको तीनों को, अगर हम तीनों में देखते हैं तो हम कहते हैं ये स्टूडेंट है, ये पार्टी में जा रहा है। सो टाइटल इज योर रिकॉग्निशन, आपकी वो आपकी स्टोरी की पहचान है। एंड अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, आपका टाइटल, आपकी वोकैबुलरी, आपका कंटेंट, इन सब के मार्क्स होते हैं। और अगर आप बिना टाइटल के लिखोगे तो देर इज नो मार्क्स फॉर दैट, और अगर आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। सो बिगिन योर, बिफोर यू स्टार्ट, आपको जो है टाइटल सोच के रखनी है। और टाइटल सोचने का ही सबसे बड़ा होता है कि अगर आपने सोचा हुआ है तो आप, सिंपल टाइटल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एक एडवेंचर, अ ट्रेजेडी,
ऐसे सिंपल वाले भी आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको मतलब कि यू विल नॉट बी एबल टू, बट डू नॉट लीव द टाइटल वन। ठीक है, तो ये तो हमारा था पहला, वेयर द बिगिनिंग इज गिवन। द सेकंड जो बहुत कम लेकिन आता आए हुए हैं स्कूल्स में, लाइक डीएवीज, देयर इज दे गिव यू द मिडिल कंटेंट। ना तो वो आगे वाला देते हैं ना वो पीछे वाला देते हैं, वो बीच का देते हैं। जैसे यहां पर मैं बीच का बोल रही थी ना, द डॉक्टर आज आर यू ओके, तो ना तो उन्होंने ये दिया हुआ है ना एंड दिया है। तो अब आपको द डॉक्टर आस्क्ड, तो इसका मतलब आपको अंदाजा लगाना कि वो इंसान हॉस्पिटल में था, तो आपको उसको उसकी जो बिगिनिंग है उसके अकॉर्डिंग करनी है। So sometimes in your question paper, the second type of story base can be a middle content. And last but not the least, again, which is very common nowadays, and that is आपका ending. और ending में आपको देते हैं पेपर के अंदर, you may end your story with, फिर आपको लाइंस दे दी जाती। That means with this you have to take the hint कि there was some accident that has taken place, क्योंकि डॉक्टर का तो तभी आना होगा ना जब कोई एक्सीडेंट या कोई मतलब देयर माइट बी समथिंग इलनेस, ये आपको यहाँ पर देखना। So these are the three types of stories that you can, and you have to find out. First of all, read the question, find out. Next, एक बहुत important one is आप लोग जो मिस आउट कर देते हो, एक तो वही टाइटल आप लोग मिस आउट करते हो, देन यू नॉर्मली मिस आउट द डायलॉग राइटिंग जो हमारे होते हैं उनको आप लोग मिस आउट करते हो। गुड वोकैबुलरी मतलब इट शुड नॉट बी वेरी रूटीन वोकैबुलरी। अगर आपको लगता है आप इस वर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। जैसे श्याम थैंक्ड, Sham paid his gratitude to the doctor. Sham was overwhelmed for this gesture. आप ऐसे इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। बिगिन आपका जो है बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। इट इज गुड इफ यू डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ। अच्छा लगता है अगर आपके 3 पैराग्राफ होते हैं, बिकॉज दैट गिव्स बेटर रीडिंग स्ट्रक्चर टू द टीचर्स। नेक्स्ट, अन इम्पॉर्टेंट वन जो मैंने उस दिन लिटरेचर में भी बताया था, डोंट मिस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स लाइक द, अ, दिस। आप ऐसे वर्ड्स को, लाइक श्याम थैंक दिस फ्रेंड एंड द डॉक्टर है, एंड डॉक्टर लिखोगे आपके मार्क्स कटेंगे, बिकॉज दैट कम्स अंडर ग्रामर। Sham thanked his friend and the doctor to save his life. Avoid abbreviations, like आप लोग and के लिए आप लोग ये डालते हो, avoid it. And pray. अच्छी स्टोरी के लिए हमेशा 2 मिनट, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप स्टार्ट कर दो, दैट विल नेवर गिव यू गुड मार्क्स। पहले 2 मिनट के लिए सोचिए, आपको कोई गाड़ी नहीं पकड़नी है, आपका वंदे भारत कहीं भाग नहीं रहा है, ठीक है ना? तो आपको कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट के लिए रुकिए, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, देन टाइटल सोचिए,
बिना टाइटल के आगे मत जाइएगा. एंड देन थिंक व्हाट कैन बी द जॉनर. अच्छा मुझे ऐसे एंड करना है. देन स्टार्ट इट, मूव इट, एंड watch all the things which I have mentioned in the important points. Good vocabulary, names to your characters. If you're adding any dialogue, it should be in between the inverted commas. आपको ऐसे जो है एक अच्छे स्टोरी को लिखना है. Your question says it was a rainy day, right? So you are going to start with the same structure. There is nothing. Lekin if you have to begin your story, like you are being given some hints, then always start with the words like there was, या फिर the name of the character. सीधा pronoun से start नहीं करते हैं, right? Enrich vocab, maybe everyone may not be that much uh, acquainted, मतलब सबको नहीं आता होगा. तो मैं मतलब कि if I say कि you if you have a word जो आपको लगता है it can be substituted, तो यूज दैट वर्ड. नॉर्मली क्या होता है ना, अगर हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं और एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया होता ना, तो बड़ा ही बोरिंग सा लगता है. सो इंस्टेड ऑफ द सेम वर्ड अगर हम दूसरी जगह पे कुछ और यूज करते हैं, लाइक एक में हमने यूज किया इट ही वॉज अपैल्ड, दूसरे में यूज किया ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज शॉक्ड, तो तीनों के मीनिंग तकरीबन सेम आए लेकिन हमने वर्ड्स अलग यूज कर लिए. तो कोशिश करिए कि ऐसे यूज करें, राइट? इफ योर क्वेश्चन इज particularly asking, also mention the message. समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में क्लास 9, समटाइम्स ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आए हैं. इफ योर क्वेश्चन रिक्वायर्स दैट, तो मैसेज को देना नहीं भूलोगे. लाइक दिस क्वेश्चन वाज अ वेरी सिंपल वन जो मैंने वैसे आपको ऑन द स्पॉट बताया था, दैट ही मेट विद एन एक्सीडेंट. लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन को आपने कुछ थ्रिल में किया है. यू आर मेड इट कि वो शाम वहां से जा रहा था, सडनली उसने ही सॉ सम पीपल, ही वेंट इनटू दैट. तो आप इसमें जो है ना, आपकी अपनी स्टोरीज आपने पढ़ी है. इफ आई वर यू पढ़ा था. इफ आई वर यू में क्या था? प्रेजेंस ऑफ माइंड. यू कैन टेक दैट एज यूर जॉनर. आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि शाम ने जो है एक बच्चे की जान बचा ली. वहां एक बच्चा मतलब कि अ चाइल्ड हैड बीन मतलब कि किडनैप्ड, द चाइल्ड हैड बीन टाइड अप. आपने मतलब कि शाम जो था वो टाइम से पहुंच गया, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस वहां पहुंच गई, बच्चे को बचा लिया. प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू कैन यूज इट एज योर मैसेज. तो all the time for class 9, 10, 11, 12, I always repeat this. Please do read the questions. Questions में आपके 40% हिंट छुपे होते हैं. बस उसे कैजुअली मत पढ़ना, एक एक वर्ड को पढ़ना. इफ देयर इज समथिंग गिवन लाइक मैसेज दिया है, तो आप सोच सकते हो कि उस क्वेश्चन उस मतलब की स्टोरी के अंदर आपको कुछ ऐसा डालना जिससे आपको मैसेज मिल रहा है. और आपके पास इतनी सारी स्टोरीज आपने पढ़ी थी, स्पेसिफिकली द सप्लीमेंट्री बुक्स आर फुल ऑफ स्टोरीज, चाहे वो एडवेंचर्स ऑफ टोटो रहा हो या फिर वो लॉस्ट चाइल्ड रहा हो. तो यू कैन यूज एनी ऑफ दोज जॉनर, अपने दिमाग में रखिए और उससे रिलेट करके अपनी स्टोरी को फॉर्म करिए. स्टोरी राइटिंग को जब आप लिखते हो ना, तो कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा, बिकॉज स्टोरी राइटिंग इज योर क्रिएटिविटी, right? The last writing skills of your syllabus is diary entry. Now, we have already done, आपने लास्ट अप्रैल में किया था, एंड नाउ टुडे इज द एंड ऑफ द सेशन में तो आप कर रहे हो. तो डायरी एंट्री क्या है?
expressions. What expressions? Of your emotions. तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि डायरी आपका एक्सप्रेशन है. इट इज रियलिस्टिक. अभी आपने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, मैंने बोला था इफ यू आर डिस्क्राइबिंग अ पर्सन इट शुड बी रियलिस्टिक. सो दिस इज ऑल्सो इन दैट वे. आप रियलिस्टिक हो, आपके साथ जो हुआ है, आपको जो महसूस हुआ है, आप उसको लिखते हो. राइट. एंड डायरी एंट्री इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, यानी कि द यूज ऑफ आई. एंड देर इज अ मिक्सचर ऑफ टेंस, बट हमारा 80% जो डायरी एंट्री होता है दैट इज पास्ट टेंस. बिगिनिंग हम प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन हमारा जो बाकी डिस्क्रिप्शन होता है दैट इज इन पास्ट टेंस. यूज वर्ड्स लाइक I am thrilled, overwhelmed, dismayed, anxious, anguished, on the top of the world. Some of the words to begin with. Matlab, now the diary entry might be on some accident, a tragedy, about yourself, about your family, about your friends. It might be about your winning in a competition, your marks, your results. It can be about that. It can be about anything that you had seen जिसने आपको डिस्टर्ब किया, आपको बहुत मतलब कि अंदर से. तो जब आप डायरी एंट्री लिखते हो तो आपको उस फीलिंग को कैसे दिखाओगे? हाउ यू विल. अब मैं यहाँ पर अपने गुस्से को दिखा सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, बट व्हेन आई एम राइटिंग हाउ आई विल बी टेलिंग दिस थिंग. मैं लिखूंगी तो अपने व्यूज को कैसे बताऊंगी? हाउ कैन आई से आई एम मतलब कि मैं दुखी हूं? तो व्हेन यू आर राइटिंग योर डायरी एंट्री यूज सच वर्ड्स, यूज सच वोकैब्स. A good diary entry is, and this depends from school to school also, that is why I'm here using a common one: date, day, time. Time is very necessary. In some schools they say write the time over here, and some they write down only. So be with your school, because formally diary entry का सच कोई फॉर्मेट नहीं होता है. इट डिपेंड्स कि इंसान, क्योंकि डायरी एंट्री मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, तो मैं टाइम यहां पर भी डाल सकती हूँ, मैं टाइम यहां पर भी डाल सकती हूँ. दैट डिपेंड्स. आपका स्कूल कहता है राइट साइड डालो तो राइट में डालो, आपका कहता है यहां डालो तो डालो. टाइम नॉर्मली इट इज ऑफ नाइट, क्योंकि हम डायरी सोने से पहले लिखते हैं, तो इसीलिए 7 PM, 8 PM, 9 PM ऐसा टाइम डाल. देन use this word dear, dear diary. एंड इट इज नेवर डेयरी. आप में से कई बच्चे होते हैं जो डेयरी बोलते हैं. भाई आप अंडा थोड़ी लेने जा रहे हो, आप दूध थोड़ी लेने जा रहे हो जो डेयरी के अंदर घुस गए. इट इज डायरी, इट इज नॉट डेयरी. सो डेयर डायरी. डाई, डाई,
पहले आई आता है, डे नहीं आता है, तो प्लीज स्पेल इट आउट. एंड you can also write your friend instead of diary. जो हमारा beginning होता है, that should be the words which I have used over here. I'm thrilled, I'm overwhelmed, I'm disturbed, I'm anguished, I'm on the top of the world, I'm riding the seventh yonder. वो आपके क्वेश्चन पर जो है डिपेंड करेगा. Say your friend has met with an accident and broken his leg. The doctor has advised him complete bed rest and he would not be able to give his final exam. You are sad. Write a diary entry expressing your views. यहां पर आपका क्या आ जाएगा? I'm dismayed. Your school organized a competition on robot making. You participated in the same and won the first prize. यहाँ आपका क्या आएगा? I'm on the top of the world. I'm riding the seventh yonder. I'm overwhelmed. तो इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं. Today I am dismayed. My friend Rahul, give the name. उसके बाद जो आपका पर्पस है उसे डायरेक्टली स्टार्ट करिए कि मतलब क्या लिख रहे हो आप. Had met with a serious accident on Saturday and his he broke या he fractured his leg. Broke की जगह fracture word is more relevant. And he fractured, unfortunately, he fractured his leg. Today I met him in the hospital. He was crying. He told me that the doctors had advised him a complete bed rest and that he would not be able to give his final exams. Rahul is a brilliant boy and missing his final exam is real. अभी तक मैंने क्लास में बोला, अब मैं राहुल को डिस्क्राइब कर रही हूँ थोड़ा सा. It is so painful. The teachers have told that they would try to talk to the principal and get some solution. Oh God, expression. Save my friend from pain. जैसे आप भगवान को बोले, भगवान उसे प्लीज बचा लो, भगवान उसको शक्ति दो. गिव हिम द करेज. प्लीज डू सम मिरेकल. आई कैनॉट सी माई फ्रेंड इन पेन. फिर एंड करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक बाय फॉर नाउ, फीलिंग स्लीपी. ये सारे वर्ड्स हैं एंडिंग के क्लास 9th. बिट टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ये सारे वर्ड्स हैं. देखो, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो. बाय फॉर नाउ, सी यू टुमारो, सी यू लेटर. फीलिंग स्लीपी, सी यू लेटर. बिट टायर्ड, एग्जॉस्टेड, सी यू लेटर. आप ऐसे इसको एंड कर सकते हो. So if you are using this technique, again, the laddu of 5 marks is in your on your sheet, right?
यूज अ गुड एक्सप्रेशन टू स्टार्ट, फिर एक्सप्लेन करिए, फिर उसको एंड करिए अच्छे मतलब की टर्म से, एंड आई हैव गिवन यू सो मेनी वर्ड्स आल्सो, यू कैन यूज देम एंड score good. That is diary entry, right? With this, we have completed our writing skills, that is descriptive writing, story writing, and diary entry.